Welcome, Narpatlal Senior Teacher, MGGS Chainpura. 10th Class History Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. During the 19th century, nationalism emerged as a force. Nationalism brought sweeping changes in the intellectual, political world of the Europe. The final result of these changes was emergence of nation-state in place of the pan-national dynastic empires of the यूरोप. यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का आना और इस राष्ट्रवाद में पूरे राज्यों को, जो राजतंत्र के राज्य थे, उनको इकट्ठा करके और एक राष्ट्र बनाना, ये भावना पूरे यूरोप में आई. द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस एंड आइडिया ऑफ नेशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, क्रांति हुआ था, उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में आई. The clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. The first revolutionaries introduced many measures and practices that could create a sense of common identity among the French people. The main purpose of the revolutionaries was to liberate the people of Europe from despotism. In other words, to help other people of the Europe to become a nation. Through a return to monarchy, Napoleon had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. The Civil Code of 1804, which was formed by Napoleon, did away with all privileges based on the birth, established equality before the law, and secured the right to property. In the mid-18th century, Eastern and Central Europe were under despotic rule and autocratic monarchies within the territories of which lived diverse पीपुल. फ्रांस की जो क्रांति आई थी, इससे राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी. फ्रांस का क्रांति 1799 में आया था और इसके साथ यूरोप में ये जो राष्ट्रवाद थे, राज्यवाद थे, राजतांत्रिक थे, इनको हटाकर पूरे देश को एक करने की भावना आई थी और क्रांतिकारियों ने ये भावना यूरोप में फैलाई. अब फ्रांस के अंदर जो है नेपोलियन एक ऐसे व्यक्ति आए थे, नेपोलियन बोनापार्ट, और उसने जो है फिर से राजतंत्र लाए, लेकिन लोगों को अधिकार दिए थे. एक सिविल कोड ऑफ 1804 जो बना था, उसमें नेपोलियन ने सभी को प्रिविलेजेस दिए थे ऑन बेसिस ऑफ द बर्थ, जन्म के आधार पर, और इक्वलिटी भी किया था कि लॉ के सामने सब बराबर होंगे, और राइट टू प्रॉपर्टी भी दी थी. इस तरह से जो 18th सेंचुरी है, उसके मध्य में आते आते यूरोप में राष्ट्रवाद की एक नई नीति शुरू हो गई थी. नाउ द अरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लासेस. Politically and socially, a landed aristocracy was the dominant class in European continent. This powerful aristocracy was numerically a small group. Majority of the populations was made up of the peasants. In central and western part of the Europe, the growth of industries, productions and trade fueled the growth of town and emergence of the commercial classes. यूरोप के अंदर किसान ज़्यादा थे और जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार प्रथा वाले लोग थे, वो कम थे. किसानों का प्रभुत्व ज़्यादा होने की, जनसंख्या ज़्यादा होनी थी, और सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप के अंदर इंडस्ट्रीज भी लगनी शुरू हो गई थी, ट्रेडिंग शुरू हो गया था. तो वहाँ पर एक कॉमर्शियल क्लासेस भी आए थे सामने. इन द बिगिनिंग ऑफ 19th century,
new social groups came into being, a working class population. The middle class made up of the industrialists, businessmen, and professionals. It was among the educated, liberal minded middle class that idea of the national unity gained popularity following the abolition of aristocratic privileges. जो जमींदारवादी थी, कुछ नोबल लोग थे, उनके लिए ये हुआ था कि जब इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हो गई थी, एक नया कॉमर्शियल क्लास आ गया, व्यवसायीकरण आ गए, और फिर 19वीं सदी के साथ ही वहाँ पर कुछ सोशल ग्रुप और बने थे, जिसमें एक तो वर्किंग क्लास थे जो मजदूर फैक्ट्रियों में काम करते थे, मिडिल क्लास बन गए थे जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स होते थे, और ये जो है एजुकेटेड थे और लिबरल माइंड के थे, इनको स्वतंत्रता की तरफ था, और इसीलिए नेशनल यूनिटी आनी शुरू हो गई थी और अरिस्टोक्रेट्स जो है वह कम होने लग गए थे. फॉर द न्यू मिडिल क्लास, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through the parliament. In economic field, liberalism stood for the freedom of market and abolition of the state imposed restriction on movement of capital and goods. राष्ट्रवाद की भावना का स्वतंत्रता ये हुआ कि जो एक मिडिल क्लास आई थी बीच में, वो फ्रीडम और व्यक्तिवाद पर निर्भर होने लगे थे. इक्वलिटी आ गई थी, सब में एक समानता लाए थे कानून के रूप से, कानून के सामने सब समान हुए. और जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फिर स्वतंत्रता की सोच हुई थी, और फिर ऑटोक्रेसी आई, क्लरिकल प्रिविलेजेस आने शुरू हो गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन बन गए थे, और इकोनॉमिक फील्ड मजबूत हुआ, और साथ ही साथ स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़े थे. ये सब के सब चेंजेस, कैपिटल मूवमेंट वगैरह भी आए थे, ये फ्रांस में हुआ, और इसका असर बाकी यूरोप में भी गया. अब हम देखते हैं कि किस तरह से यूरोप में ये राष्ट्रवाद की भावनाएं आई. 1707 एक्ट ऑफ द यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. जो इंग्लैंड है उसको यूके या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से ये एक जो है आपसी समझौता हुआ था, वो राष्ट्रवाद हुआ था कि छोटे से जो राज्य थे वो एक हो गए और नया यूके बना. देन फर्दर birth Wilhelm Grimms of the liberal leaders in Germany. In Germany, he started equalities. Then, in 1789 was the French Revolutions. Then 1797, Napoleon Bonaparte invaded Italy, and Napoleonic War begins. Then, in 1801, Ireland was forcibly incorporated into यूनाइटेड किंगडम. आयरलैंड जो एक अलग राज्य था, उसको फोर्सली यूके में मिलाया गया था ये. और फिर 1804 में सिविल कोड आया था, और ये जो है नेपोलियनिक कोड भी कहलाता है, जो वहाँ के फ्रीडम और राइट्स के बारे में उन्होंने लिखे थे. उसके बाद इटालियन रेवोल्यूशनरी जो आए थे उसका जन्म हुआ था, मैजिनी का. 1415 में वियना पीस सेटलमेंट हुआ था, और उसमें नेपोलियन हार गए थे. और 1815 में बैटल ऑफ द वाटरलू हुआ था, इसमें हार हुई और आगे बढ़ा. फिर वहाँ यूरोप में रेवोल्यूशनरीज आए थे, और रेवोल्यूशंस में आर्टिसंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पीसेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट economic hardship. Middle class demanded constitutional representatives and government. Italian, German,
Magyars, पोल्स, चेक्स एक्सेट्रा डिमांडेड नेशन स्टेट। यूरोप के जो मध्य के जितने भी देश हैं वहाँ भी जो है राष्ट्रवाद की भावना आई और उन्होंने अपने राष्ट्र की मांग की थी। और इसी तरह से जो है 1857 से लेकर 70 के बीच में यूनिफिकेशन ऑफ द इटली का भी यूनिफिकेशन हुआ था। और 1861 इमैनुअल II was the proclaimed the king of the यूनाइटेड इटली को यूनाइटेड कर दिया था। एंड 1866 to 71 यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी का भी एकीकरण हुआ था और ये राष्ट्रवाद की भावनाएं आगे बढ़ती गई थी। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि किस तरह से जो है ये असर पड़ा था इन पे। जब पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज द प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड एट द वर्साइल्स, ये जनवरी 1871 की बात है। तो इस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावनाएं आई थी और भावनाओं के कई टर्म्स थे जिसमें एब्सोल्यूटिस्ट, अ फॉर्म ऑफ द मोनार्चिकल गवर्नमेंट दैट सेंट्रलाइज्ड, मिलिटरिस्ट एंड रेप्रेसिव, मिलिट्री शासन की तरह दबाव में रखकर प्रेशर डालते थे, वो एब्सोल्यूटिस्ट कहलाते थे। और यूटोपियन मीन्स अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल एंड दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। सपनों की दुनिया, सब जनता के हिसाब से, समाज के हिसाब से अच्छी आइडियोलॉजी की जो व्यवस्था बनती है उसको यूटोपियन बोलते हैं। नेशन मीन्स it is the culmination of long past of the endeavors, sacrifice and devotions. We call it nation. And suffrage means right to vote is called suffrage. This is the important words what we are reading. Jalvarians, a custom union which was formed at the initiative of Persia and joining by the most of the German state. जर्मनी के एकीकरण को इस नाम से जानते हैं। Now let us see the conservation, a political philosophy that stressed the importance of the tradition, established institution and custom that preferred gradual development of the quick changes. Revolutions in sense an armed or unarmed rebellion led by common people against the government or colonial state is called revolutions. And nationalism when concerned, it is a feeling of political consciousness and unity among the people of state. It is the devotion, love and patriotism feeling for a one own nation. And let us talk about the liberalism. Liberalism in sense for the new middle class of 19th century Europe, liberalism stood for freedom and individual equality of all before the law. समाज नियम और कानून के सामने सभी समान होने चाहिए, उनके अंदर किसी तरह का कोई भेदभाव न हो, इसे लिबरलिज्म के नाम से लिया था। और इसी तरह से जो है फेमिनिज्म, जो एक ऐसा एजिटेशन हुआ था जिसमें महिलाओं ने अपने राइट के लिए बात की थी, एजिटेशन किया था। और उसके बाद हम बात करेंगे फ्लैग्स की। तो यूनियन जैक जो है फ्लैग है वो ब्रिटिश फ्लैग है। और ये जो हमने अब तक पढ़ा था, यूरोप में एक आइडियोलॉजी आई थी और आइडियोलॉजी से ये तय हुआ था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्रवाद ने वहाँ पर जन्म लिया था। दिस वॉज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर हिस्ट्री। जय हिंद।